everyone. I hope you all are doing great. Hello, Sat Shri Akal uncle. सत श्री अकाल जी। How are you, uncle? All well? ओ फर्स्ट क्लास मौजा। Good, uncle. People are excited. ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਆਈ ਨੋ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਸੇਜ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਸ ਨਾਲ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਰਨਿੰਗਸ ਹੈ। ਅੰਕਲ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਭ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ ਮਿਕਸ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਕਲ। ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੀ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਡੈਪਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਤਾਂ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ। ਉੱਥੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਸੀ, ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਰ ਦੈਨ 20 ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈਆਂ ਮੈਨੂੰ। ਓਕੇ ਅੰਕਲ। ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਇਹਨੇ ਫੇਮਸ ਅੰਕਲ। ਥੋੜੇ ਜਸਟ ਆਈ ਐਮ ਵੇਟਿੰਗ ਥੋੜੇ ਲੋग ਹੋਰ ज्वाइन कर लें फिर आई विल क्विकली हाँ हाँ इंट्रोड्यूस प्लीज यू। प्लीज, हाँ कोई दिक्कत नहीं जी। ओके अंकल। आई थिंक आई एज सुन एज मैं शेयर करिਆ देयर सो मेनी पीपल हु आर एक्साइटेड ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਤਲਬ आई just wanted to say thank you again. Hi Diksha, hi Prachi. Okay, people who are joining, please you can guys ask your question in the comment section. अपने question comment section में डाल दीजिए। जब भी टाइम मिलेगा I will refer back and I will answer those questions. So in interest of time, let me introduce Jolly Uncle. I know introduction the requirement नहीं है, everybody knows Jolly Uncle, but for the people who are not aware about Jolly Uncle, I think हम में से कितने लोगों ने इतनी किताबें पढ़ी नहीं होंगी जितनी अंकल ने अपने करियर में लिख दी हैं। आई थिंक मेरे पीछे जो ड्रॉ शेल्फ है यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 24 होंगी और अंकल ने 37 बुक्स, राइट अंकल? या अभी और भी लिखी जा रही होगी? 37 इज द राइट नंबर, राइट? सो अंकल ने 37 बुक्स लिख चुके हैं अबाउट लाइफ, अबाउट पॉजिटिविटी एंड सो मेनी थिंग्स एंड 1000+ आर्टिकल्स। आई थिंक आज की जनरेशन ने इतने आर्टिकल्स पढ़े नहीं होंगे जितने अंकल लिख चुके हैं। एंड अंकल ऑल्सो हैज अ यूट्यूब चैनल, जॉली जेपीएस, जॉली अंकल के नाम से ही है। एंड जब आप वहां पे जाओगे आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। अंकल इज अ कैलीग्राफी एक्सपर्ट ऑल्सो, दैट आपकी अंकल करेक्ट मी, राइटिंग, सॉरी ग्राफोलॉजी नॉट कैलीग्राफी। हाँ जी सॉरी अंकल, या सॉरी ग्राफोलॉजी। तो अगर आप में से कितने लोगों को पता भी नहीं है ग्राफोलॉजी, ऑफ कोर्स अंकल हमें बताएंगे दैट हाउ इट इज सो इम्पोर्टेंट इन लाइफ ये। एंड Jolly Uncle has been invited to do various shows, so many awards, and I think inspiration to youth nowadays, and I think to older people also, जिनको देख के अंकल को लगता होगा कि ये हमारे साथ की हैं और इन्होंने कितना कुछ कर लिया, हमने कुछ नहीं किया। So welcome uncle, welcome, and I think I request everybody to please follow uncle on Instagram, YouTube channel पे भी जाओ अंकल के, आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा आपको। And I think uncle Monica saying she's there, so she's there, she's one of your followers. So YouTube पे जाओ, after the Instagram live मैं अपने Instagram story पे सारे अंकल के लिंक्स शेयर कर दूंगा so that you can reach out, ताकि जितनी नॉलेज है हम तब तक ना रहे, अंकल ने जितना अपना लाइफ एक्सपीरियंस है वो हम सब तक पहुंचा सके। तो थैंक यू अंकल, वेलकम, सत श्री अकाल, एंड वेलकम यू टू the channel Vitamin G. Uncle, we are having actually no negativity November the campaign चल रहा है ताकि for positive mind people. So objective है कि every day we should start saying no to things, overthinking होए या negativity किसी भी चीज ही होए। So we are asking people कि कुछ ना कुछ ऐसा करो कि जिससे आप बेटर बन सको हर रोज। 30 डेज अगर नो नेगेटिविटी नवंबर में कोई पार्टिसिपेट कर रहा है तो ऑफ कोर्स 30 डेज अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे और नो बोलेंगे नेगेटिव चीजों को तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है। सो वेलकम इन दैट पर्सपेक्टिव। आप और अच्छा जोड़ेंगे और आप और यूथ को इंस्पायर कर देंगे किसी भी एज ग्रुप को इनफैक्ट।
So please, uncle, I might have missed out on some नो introduction. नेगेटिव नवंबर नहीं होना चाहिए, नो नेगेटिव इन लाइफ, पूरी हाँ जी, लाइफ में नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए हमारे। दैट्स राइट अंकल। बट अब हमने सोचा कि चलो एक स्टेप से शुरू करते हैं, अगर 30 डेज कर बिल्कुल लेंगे बिल्कुल तो बिल्कुल। थोड़ा वो चेंज हो जाएगा। तो यही है अंकल। तो स्टार्ट थैंक यू सो मच। आई थिंक आप आई विल गिव यू टाइम सो दैट, मतलब अगर मेरे तो कुछ मिस हो गया कि हाउ एज मच एज आई नो अबाउट यू, तो प्लीज शेयर दैट हाउ इज योर लाइफ। होप यू आर डूइंग वेल in COVID, everything is fine in you and your family, and what is coming up, how many books Ajay और आनी है. So please share your thoughts, and it'll be great to know more about you, about your journey. नहीं, ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ हाँ ਪਲੀਜ਼? जी अंकल, मैं ਦੱਸਦਾ, मैं ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੁਝ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਓਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਓਕੇ। ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਨੋ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਇਨ ਨਵੰਬਰ। हाँ जी अंकल, बट वी कैन टॉक अबाउट एनीथिंग, लाइक ਤੁਹਾਡੀ जर्नी किਵੇਂ रही है, हाउ कैन पीपल हाउ कैन पीपल अडेप्ट कि नेगेटिविटी आए ना, नेगेटिविटी लाइफ में ही ना रहे। तो विद योर एक्सपीरियंस, विद योर जर्नी, प्लीज शेयर दैट। देखो, जिथे तक मेरी लाइफ है, शायद मोर देन 50-60 इंटरव्यूज मेरे यूट्यूब चैनल के उत्ते ऑलरेडी हैगे ने, और भी दूसरे बहुत सारे मीडिया के उत्ते, मतलब कि मेरे सारी लाइफ स्टोरी असी उसमें थोड़ा जा टच करांगे। रीजन बिंग कि बहुत बारी वो चीज़ डिस्कस हो चुकी है। आज क्योंकि टाइम साढ़े को थोड़ा हैगा, तो मेरी कोशिश है होंदी है कि उस टाइम दे विच असी मैक्सिमम कितनी पॉजिटिविटी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि Right. नेगेटिविटी ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿविटी ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਨੈਗੇਟਿविटी ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਲੀਨ ਅਪ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਈਂਡਸੈਟ, तो उस तो बाद नेगेटिविटी पूरी लाइफ साढ़े नजदीक भी नहीं आ सकती। राइट अंकल। आज बेसिकली सारे यंग दोस्त जो हमारे जुड़े हैं हमारे साथ, तो हम हिंदी, इंग्लिश और पंजाब से, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे बच्चे मैं कहूँगा, हालांकि वो अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम और बड़े अच्छे लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन एक उम्र का जो डिफरेंस होता है, तो मैं उनको एज ए बच्चा अपने बच्चों की तरह ही ट्रीट करता हूँ। तो गगनदीप जी से प्यार है, इन्होंने कहा, तो आज ये मौका मिला बहुत अच्छा कि आप सभी के साथ इस टॉपिक पे हम बात कर सकें। तो जैसे कि मेन जो आज की ऑडियंस मुझे बताया गया है कि यूथ है हमारा, और ओवरऑल हमारा कंट्री, हमारी सोसाइटी, फैमिली, हम सब आज यूथ की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन, जो टेक्नोलॉजी जिस फेज में वो गुजर रहे हैं, हमने कभी अपनी लाइफ में वो चीजें सोची भी नहीं थी। राइट। कभी इंटरनेट नाम की चीज मेरे ख्याल मेरी एज और मेरे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के ख्वाब में भी कभी नहीं आई होगी कि भी ऐसी भी कोई चीज होती थी। क्योंकि मुझे याद है कि दिल्ली से चंडीगढ़ या दिल्ली से लुधियाना फोन करना होता था तो ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे का प्रोजेक्ट होता था, तो 1 मिनट 2 मिनट बात होती थी, और यस नो सत श्री अकाल करके, कई बार तो सत श्री अकाल होती थी तो कॉल खत्म हो गई, बंद हो गई, अब कल दोबारा नंबर आएगा, आपका आज नंबर नहीं आ सकता। हाँ जी। तो पहले जो टेक्नोलॉजी जो डेवलप होती थी उसकी बहुत लंबी लाइफ होती थी, राइट। 5 साल, 10 साल, 15 साल। आज जितना मैं फील कर पाता हूँ बीइंग ए राइटर, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने आप को अपडेट रखूं, उतना तो नहीं रख पाता जितना कि आप लोग गगन जी रख पाते हैं, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी के बहुत साथ चल रहे हैं, बड़े फास्ट चल रहे हैं, हम उतने स्पीड से तो नहीं चल पाते, लेकिन फिर भी कोशिश होती है कि अपने आप को थोड़ा अपडेट मैं करता रहूं। राइट अंकल। तो अगर नेगेटिविटी की बात करनी है लाइफ में, सक्सेस या जो कुछ हमारी अचीवमेंट है, जो कुछ हमारे ड्रीम्स हैं, वो
अक्सर लोग कंप्लेंट करते हैं कि शायद वो हमारे लिए नहीं बने, हम उन्हें अचीव नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर ए आदमी ए कर सकता है या बी कर सकता है तो हम लोग बाकी क्यों नहीं कर सकते। राइट। सबसे जो बेसिक फर्क मैं ऑब्जर्व करता हूं एक बहुत ही सक्सेसफुल आदमी के अंदर और एक जो बीच में रह जाते हैं, जो अपने ड्रीम्स को मतलब कि रियल शेप में नहीं ला पाते, कि वो अपने आप को डिस्कवर नहीं करते। सबसे पहली चीज जब भी हम अपनी, चाहे पढ़ाई लिखाई की बात है, क्योंकि आजकल पढ़ाई लिखाई का जब कॉलेज में हम लोग होते हैं तो वो टर्निंग पॉइंट होता है हमारी लाइफ का, कि इसके बाद हमारी लाइफ अब किस डायरेक्शन में जाएगी। तो वहां पे जरूरत होती है कि हम अपने आप को पहले अच्छे से डिस्कवर करें। राइट। मेरी कैपेबिलिटीज क्या है, मैं क्या कुछ कर सकता हूं, क्या क्या सोर्सेज मेरे पास हैं, राइट। क्या जो काम दूसरे कर रहे हैं मैं कर पाऊंगा, क्या मैं उनसे अच्छा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मोस्टली यहाँ पे थोड़ी सी गलती करते हैं कि अपने आप को कभी भी इतना असेस नहीं करते, एनालाइज नहीं करते कि हमारे अंदर क्या क्या क्वालिटीज है। राइट। जल्दबाजी में हम कोई डिसीजन ले लेते हैं, किसी के प्रभाव में आके, पेरेंट्स, फैमिली में या रिलेटिव या टीचर, उनके जो उनकी समझ है। लेकिन हमारे मन में क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमारे प्लस पॉइंट क्या है, वो लोग नहीं जानते। राइट। कोई जान ही नहीं सकता, समझ ही नहीं सकता। हमारे माँ बाप भी नहीं समझ सकते कि हम क्या कुछ कर सकते हैं और क्या कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोग क्या है कि अपने ड्रीम्स और डिजायर्स को मिक्स कर देते हैं। राइट। डिजायर तो हर किसी की होती है कि अच्छा बढ़िया बंगला हो, बढ़िया सी गाड़ी हो, सुंदर सी लड़की हो, चंडीगढ़ दी सड़क हो। राइट अंकल। ठीक है ना। लेकिन डिजायर, ड्रीम्स और फिर डिसीजन, डिजायर कभी ड्रीम्स नहीं बनते। और ड्रीम्स को अगर हकीकत बनाना है तो उस तो पहले डिसीजन लैन तो पहले सानू बहुत सारे फैक्टर्स देखने पैंदे ने। राइट अंकल। मैं कुछ डी दे वर्ड यूज करांगा, ਉਹ ਜੇ ਸਾਡੇ फ्रेंड्स नोट कर लेंदे ने, बड़े सिंपल वर्ड है ने, रूटीन ही तो डेली आलमोस्ट सारे यूज करते हैं। ਉਹ कुछ डी अपनी लाइफ में यूज कर लेंदे ने। ਮੈਨੂੰ लगता है कि इस प्रोग्राम ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। वंडरफुल अंकल। फर्स्ट पॉइंट जिवें मैं लिया, डिस्कवर, डी टू डिस्कवर योरसेल्फ। सब तो पहले ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈਗੇ, डिसीजन ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, क्यों करना है, राइट। ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਬਣਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। दैट्स ਕਿ राइट। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ डिटरमिनेशन, डेडिकेशन और सब तो इंपॉर्टेंट चीज डायरेक्शन। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਸਪੈਕਟ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈ, लेकिन ਜੇ ਸਾਡਾ रूट ठीक नहीं हैगा। मैं एरोप्लेन का अक्सर एग्जाम्पल देना कि एरोप्लेन करोड़ों रुपए का एक हवाई जहाज बनता है, लेकिन जे इथों बॉम्बे जाना है, पायलट भी एक्सपर्ट है, भी 25-30 साल का एक्सपीरियंस है और वो डायरेक्शन नीडल नहीं हैगी,
कि वो सानू दिल्ली तो बॉम्बे ले जाएगा? नहीं ले जा सकता। नहीं ले जा सकता, राइट। दिल्ली तो कनाडा जाना है तो किस तरह जाता है? डायरेक्शन नीडल दे उत्ते कि हुण इस हाइट पे उन्हें इस कंट्री के थ्रू इत्थों दी किस तरह डायरेक्शन लैनी है, किस तरह एग्जैक्ट टाइम के उत्ते एक एक मिनट एक एक सेकंड कैलकुलेट करके अगला कनाडा तुहानू उत्थे उतार दे। दैट्स राइट अंकल। ते ਇਹ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਕੂਟਰ ਲੈਣਾ ਹੋਏ, ਬਾਈਕ ਲੈਣੀ ਹੋਏ, ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਰ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਟਰਾਈ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਪੜਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਨ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਨੀ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। दैट्स राइट अंकल, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी अंकल, मैं सॉरी आई जस्ट इंटरप्ट यू ऑफ कोर्स कि नहीं तुझे बड़ा बढ़िया एक्सप्लेन करा। देखो मेरा भी आई आल्सो थिंक ड्रीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ते ड्रीम्स ते डिजायर्स डिस्टिंग्विश होना बहुत जरूरी है। एंड जे ड्रीम्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ गोल्स बना लांगे, ऑटोमैटिकली डायरेक्शन मिल जाएगी किसी ना किसी जगह। तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ डिटर्मिनेशन रखना पड़ेगा। So people who are listening, of course, use these daily D's in your life, which is discover, please discover yourself, take a decision, make your dream list, but have a determination, dedication and direction. Right uncle? These are the D's. अगर आप रोज हम अपने आप को पूछेंगे तो you can move ahead more quickly. So D's को अडॉप्ट करके लेकिन I have learned this. सब चीजों पे ना क्लैरिटी बहुत जरूरी है। माइंड में जितनी क्लैरिटी होगी हमारी उतनी जल्दी, क्योंकि आज की डेट में टाइम का बहुत बड़ा रोल है। हमारे पास पहले जैसा टाइम नहीं है। अगर इस साल हमें चांस नहीं मिला तो हम नेक्स्ट ईयर ये कर लेंगे। एक साल में तो दुनिया पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएगी। हमारे जो दूसरे साथी हैं वो क्या अचीव कर लेंगे, और हम, वो कहते हैं ना, एक बड़ी मशहूर सही है कि जिंदगी जो है ना मौके बड़े कम देती है, धोखे ज्यादा देती है। तो इसलिए जब कभी मौका मिले ना तो चौका उसी टाइम मारना चाहिए। राइट अंकल। अगर हम सोचेंगे नहीं अब अगली बॉल आएगी, दूसरा ओवर आएगा, दूसरा प्लेयर आएगा, उसकी बॉल थोड़ी सी लूज होती है, मैं उस पर चौका मारूंगा, वो अपॉर्चुनिटी नहीं आने वाली। राइट, सही अंकल। हर टाइम, हर मोमेंट जो है वो अच्छा है, बेस्ट है हमारी लाइफ का। हमें इसी टाइम ही डिसीजन लेना है, इसी टाइम ही हमें, नहीं 2 महीने बाद, वो पंडित जी ने कहा है, पुजारी जी ने कहा है कि 1 साल वेट करो, 1 साल के बाद आपका टाइम अच्छा आएगा। अच्छा टाइम क्या होता है? प्रभु ने, भगवान ने हमें इतना अच्छा टाइम दिया, आज एक नई जिंदगी दी, आज सुबह उठे हैं, बिल्कुल हेल्दी फिट है, हेल्दी माइंड है हमारा, तो इससे अच्छा दिन और क्या हो सकता है? बहुत सारे हमारे लाखों लोग जो रात को सोते हैं वो बेचारे अगले दिन उठ ही नहीं पाते। एग्जैक्टली। इस दुनिया में ऐसा भी है। हाँ अंकल, अप्रोक्सीमेटली 10 लाख लोग हैं जो नींद से उठते ही नहीं है ग्लोबली अगले दिन सुबह। हाँ, तो उनको अगर हम देखते हैं तो उनसे कंपैरेटिवली हम कितने लकी हैं, कितने ब्लेस्ड हैं, कितनी ब्लेसिंग्स है प्रभु की हमारे ऊपर, वाहिगुरु की कितनी ब्लेसिंग्स है हमारे ऊपर। तो अगर हम इस तरह की अपॉर्चुनिटीज को इस तरह बार बार छोड़ते रहेंगे तो जिंदगी में लीडर तो कभी नहीं बन सकते। राइट अंकल। भीड़ का हिस्सा जरूर बन जाएंगे, ठीक है कि अपनी दाल रोटी चला लेंगे, 9 से 5, 10 से 6 की कोई जॉब ले लेंगे, कहीं ऑफिस में क्लर्क असिस्टेंट या मैनेजर कहीं लग गए, जैसे भी हमारी कैपेबिलिटी है, जो मैंने बात की, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हम कर लेंगे। लेकिन वो हमारी लाइफ का एम नहीं है आज। हर दिन हमें नए आइडियाज चाहिए, हर दिन हमें नए कंसेप्ट चाहिए। दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, एवरेज हर 3 घंटे में एक नई डिवाइस मार्केट में आ रही है। जो पहले 3 साल 4 साल में एक डिवाइस आती थी, आज 3 घंटे के बाद आप जितनी बार नेट ऑन करो, जितनी बार आप गूगल को देखते हो,
कोई ना कोई नई डिवाइस, नए ऐप, कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जो कि आपकी जिंदगी को एकदम बिल्कुल चेंज करके रख देती। बिकॉज अंकल कोई तो वो थॉट लगा रहा है कि कुछ नया करना है, कुछ नया इवॉल्व करना है, और तो हमारे पास इतनी लेवरेज हो रही है। जैसे आप एग्जांपल दे रहे हो कि हम मतलब आपके पेरेंट्स हमारे आपके उनके टाइम पे तो आप नहीं सोचो, आपके ही ट्रांजिशन में कितना कुछ आया फ्रॉम टाइपराइटर टू सेल फोन, राइट? आपने कितना कुछ जर्नी देखी है टाइपराइटर से लेके अब सेल फोन के ऊपर सब कुछ एक क्लिक से हम बात कर पा रहे हैं। तो ऑफ कोर्स लैंडलाइन फोन मुझे याद है, जब मैंने घर के लिए अप्लाई किया था तो दिल्ली में 10 साल वेटिंग थी उसकी। और जमुना पार जो इलाका है वहां पे 18 साल वेटिंग थी। तो इससे आज 1 मिनट में फोन करो, 10 कंपनीज वाले आपको घर आके मोबाइल फोन चार्ज करके दे जाते हैं, और आप पूरी दुनिया में वीडियोस भेज सकते हो, अपनी बात कर सकते हो। इस तरह के हम सारे प्रोग्राम कर सकते हैं। अब ये शायद 10 से ज्यादा कंट्रीज में लोग हमें देख रहे हैं। यस अंकल, एग्जैक्टली। मैंने भी वो आपका मैसेज शेयर किया तो मुझे बहुत सारे सिंगापुर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से कंफर्मेशन आई, क्योंकि बाई चांस आज उन लोगों के पास भी टाइम है तो वो कहते हैं हम जरूर एंजॉय करेंगे इस प्रोग्राम को। थैंक यू एवरीवन जॉइनिंग। अंकल लोगों के 1-2 क्वेश्चन थे, आई थिंक मोनिका का ही था। आप प्लीज बताइए। तो उनका क्वेश्चन था कि अंकल एक तो था उनका कि आपने अपनी जो स्टोरी बताई कि स्ट्रेस पहले ज्यादा था या अब ज्यादा है, और आप इतना कुछ कैसे मैनेज कर लेते हो? आप इतने सारे शोज, इतने सारे इंटरव्यूज, तो आपको कभी रेस्टलेसनेस नहीं होती है, इरिटेशन नहीं होती? ये क्वेश्चन था मोनिका का है। और सेकंड ये था कि आपको मतलब अभी कब स्ट्रेस ज्यादा था, जब कुछ नहीं था, मोबाइल वगैरह नहीं थे, और आज की डेट में कब स्ट्रेस ज्यादा था? ये 2 क्वेश्चन थे मोनिका के। स्ट्रेस सिर्फ उस टाइम होता है जब हमारा एटीट्यूड प्रॉपरली बैलेंस नहीं होता। राइट। टाइम, हालात या काम के मुताबिक स्ट्रेस कभी नहीं बढ़ता। अब एक काम है, अगर मैं उठाऊं और मैं ठीक एटीट्यूड के साथ उसे देखता हूं तो मैं उसे बड़े इजीली, बड़े प्यार से कर लेता हूं। लेकिन अगर मैं अपने काम को प्यार नहीं करता, काम तो मुझे करना ही है। हाँ जी। और जब मैं वो काम करूंगा तो फिर वो स्ट्रेस बन जाएगा। एग्जैक्टली। तो जो हमारा पैशन है वो जरूरी नहीं हमारा प्रोफेशन हो। एग्जैक्टली। हमारे इंडिया में 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो पैशन डेवलप किया उस प्रोफेशन में वो कभी नहीं जा पाते। एग्जैक्टली। MBA करके कई लोग ट्यूशन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर बन के वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कोचिंग दे रहे हैं। राइट। तो हमें हालात के मुताबिक अपने माइंडसेट को, अपनी बॉडी को उसके अकॉर्डिंगली अलाइन करने की जरूरत है। राइट। कि हमारा एटीट्यूड कैसा है। क्योंकि लाइफ तो हर दिन, जैसे वो क्रिकेट का कई बार एग्जांपल देते हैं, बैट्समैन जब खेल रहे थे, सचिन खेल रहे थे, गावस्कर साहब थे या कपिल देव जी थे, तो जब भी खेल रहे हैं तो हर बॉल जो आती है वो एक चैलेंज की तरह आती है। हमारी लाइफ में भी हर दिन जो आता है वो एक चैलेंज की तरह आता है। तो अगर हम सिर्फ स्ट्रेस को लेके बैठे रहेंगे तो काम कब करेंगे? राइट अंकल। और उस चैलेंज में ही अंकल अपॉर्चुनिटी होती है। हर चैलेंज में एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हम कैसे उस चैलेंज को एज एन अपॉर्चुनिटी बना के उसका सोल्यूशन ढूंढे। राइट। तो ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको किस व्यू पॉइंट से देखते हैं, हमारा नजरिया क्या है। मैंने बहुत सारी किताबें, लास्ट किताब मैंने जो लिखी है सफलता की ऊंची छलांग, वो सिविल सर्विसेज या बैंक के ऑफिशियल्स जो सीनियर पोस्ट के लिए हैं, या दूसरे जो अपना बड़े लेवल पे बिजनेस शुरू कर रहे हैं या फैमिली का बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मैंने लिखी है कि अपनी सोच को बड़ा करो। अगर हमारी सोच ही छोटी है, अगर मैंने टारगेट ही बहुत छोटा रखा है और जब मेरे सामने एक बड़ा टारगेट आ जाता है, आज मैं अगर 200 शर्ट का टारगेट लेके रखता हूं कि मैंने फैक्ट्री लगाई है 200 शर्ट बनानी है, और बाई चांस मुझे एक एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल जाता है कि 20,000 शर्ट हमें चाहिए डेली, तो मैं तो कभी कर ही नहीं पाऊंगा। मेरे तो ड्रीम में नहीं है 20,000 शर्ट कैसे बन सकती है।
हम्म। तो सोच राइट। अपनी हमारी जो है, विजन जो है हमारा वो बड़ा होना चाहिए, जितना बड़ा रख सकते हैं वो रखना चाहिए। राइट अंकल, एंड आई थिंक इस पे ऐड करूंगा मैं कि देखो थोड़ी खिड़कियां हमें ही खोलनी पड़ेंगी और कोई नहीं खोल सकता खिड़कियां आके हमारी, और वो खिड़कियां हमें ही अपनी सेल्फ टॉक से करनी पड़ेगी कि जो आपने बोला कि हमारा डिटर्मिनेशन क्या है और हम क्या करना चाहते हैं। और लाइफ में कंप्लेन करना और रोना तो बड़ा आसान है कि मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे साथ ये नहीं हुआ, और एट द सेम टाइम हम देखते हैं लोग जो उसी टाइम को यूटिलाइज करके कहां कहां पहुंच जाते हैं बिकॉज उन्होंने अपनी सेल्फ वर्थ और अपने आप को पुश किया, क्योंकि अदरवाइज कंप्लेन करना तो बहुत आसान है अंकल। जी कंप्लेंट सर। की बात की है आपने, मोबाइल फोन पे हम किसी को कहते हैं फोटो खींच दो हमारी, हाँ जी। अब फोटो खींची उसने, अगर फोटो अच्छी आ गई तो हम उसे थैंक्स भी नहीं बोलेंगे, और फोटो अच्छी नहीं आई तो सबसे पहले तो फोन ठीक नहीं है, फोन प्रॉब्लम वाला है, ये फोन बढ़िया नहीं है। हाँ जी। दूसरा, हमारी बैकग्राउंड ठीक नहीं है, बैकग्राउंड ठीक होती ना फिर फोटो बहुत बढ़िया आते हैं। तीसरा, फिर जिसने फोटो खींची है फिर 10 कमियां उसमें निकालेंगे तो ये कैमरा पकड़ना ही नहीं आता। राइट। हम तो पहले से ही सुंदर है, हमारी फोटो खराब कैसे आ सकती। राइट तो अंकल। हम अपनी कमी, अपनी जो गलती है उसको कभी नहीं एक्सेप्ट करते। हम्म। जरूरत है उसको एक्सेप्ट करने की। अगर लाइफ में इंप्रूव करना है, दूसरों से आगे निकलना है, तो सोशल मीडिया बहुत बड़ा हथियार है। उससे देखो क्या कुछ हो रहा है हमारे आसपास। हम्म। ठीक है कि उसमें बेकार का कंटेंट काफी है, लेकिन क्वालिटी कंटेंट भी बहुत अच्छा है। बहुत है अंकल। हाँ जी। अगर हम 30-40% भी उसमें से क्वालिटी कंटेंट डेली 15 मिनट भी पढ़ते हैं, तो हम हर दिन अगर 15 मिनट अपनी लाइफ में से अपने आप को बेहतर बनाते हैं, तो कुछ ही दिनों में जो है बाकियों लोगों से हमारी लाइफ बहुत अच्छी बन सकती है। राइट उस अंकल। टाइम फिर हमें ये एक्सक्यूज, ये फेलियर, इन चीजों का ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आता ही नहीं अंकल इंसान। सॉरी। सोशल मीडिया पे जब भी जाओ, वहां पे मैं एक चीज सबको जरूर कहता हूं कि टाइम का बड़ा ध्यान रखना, क्योंकि ये एक ऐसा मैग्नेट है कि एक बार अपनी तरफ खींचता है, उसके बाद हम एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, कहाँ के कहाँ पहुंच जाते हैं, हमें पता ही नहीं लगता कि हमारे 1.5-2 घंटे कहाँ बेकार हो गए। एग्जैक्टली अंकल। सोशल मीडिया पे आप यूज करो, सीखो, समझो नई चीजें क्या हो रही हैं। सबसे लेटेस्ट यही चीज है जो हमें बता सकती, लेकिन इसके साथ घड़ी की सेकंड की सुई को भी देखते रहो राइट। कि हमें हर टाइम आगे भी बढ़ना है, और हमें उसमें एक भटकना और भी नहीं है। ऐड हो जाएगा अंकल, डिसिप्लिन। हाँ, डिसिप्लिन, वो जो डी हमने है उसमें डिसिप्लिन भी ऐड कर सकते हैं। डिसिप्लिन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आर्मी वाले क्यों हर जगह फिट होते हैं और हर जगह सक्सेसफुल होते हैं, उसके पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डिसिप्लिन उनका। अब घड़ी की एक सेकंड की सुई जो है वो हमें बताती है कि चाहे कोरोना आ गया, चाहे आंधी आ गई, तूफान आ गया, फ्लड आ गया, प्रेसिडेंट जीत गया, हार गया, कंट्री में कुछ हो रहा है, लेकिन हमें चुपचाप अपनी डायरेक्शन में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें वहां से कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। नहीं तो हाँ अंकल, बिल्कुल अग्री विद यू। देखो आज की डेट में वो कह रहे हैं जैसे सोशल मीडिया को हमें अपने अकॉर्डिंगली यूज करना है। वो कह रहा है कि हम सब फोकस कर रहे हैं बाहर क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है। और जो अंकल आपने शुरू में बोला अबाउट डिस्कवरिंग, तो ये डिस्कवर करो कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम क्या चाहते हैं। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अंकल, हमें नहीं फर्क पड़ता कि अमेरिका में ट्रम्प जीता है या बिडेन जीता है। हमारे घर में खाना हमने मेहनत करनी है, हमने जो करना है वो हमारे साथ होगा। राइट। तो हम अपना टाइम रादर अपने आप में इन्वेस्ट करें कि आपने जो बोला 15 मिनट बहुत इनफ है। अगर हम किसी चीज को रोज 15 मिनट पढ़ते हैं और अगर हम 1% भी रोज इंप्रूवमेंट लाते हैं, तो 30 डेज में 30% इंप्रूवमेंट तो आ सकता है हमारे अंदर कि किसी भी चीज के लिए। और हाँ, डिसिप्लिन लगता है। नहीं अंकल, थैंक यू सो मच फॉर दिस। मैं अंकल थोड़ा बैक ट्रैक पे जाना चाहता हूँ और जी, आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 37 बुक्स अंकल, आपने सोचा था जब आपने शुरू किया कि 37 बुक्स, 1000 आर्टिकल्स, तो वो जर्नी कैसी रही है अंकल? क्या चैलेंजेस आए छोटे छोटे, ताकि जो यूथ है इंस्पायर हो पाए, उनको उनको लगता है कि ये हो ही नहीं सकता।
राइट। आजकल कितने लोग हैं जो एक बुक लिखने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, 37 बुक्स, बट ऑफ कोर्स आपको भी चैलेंज रहा होगा कुछ ना कुछ। तो आपने कैसे, अगर आप एक आध किस्सा सुनाएंगे उसका, तो इट विल बी ग्रेट। 37 बुक्स की बात तो बड़ी दूर की है। मैंने तो जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि 2 लाइनें लिख के मैं कभी राइटर बनूंगा। मेरी पूरी फैमिली में कभी किसी ने, क्योंकि वो लोग पाकिस्तान से आए थे और उस टाइम यही था कि किसी तरह कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए या कुछ है कि फैमिली के लिए इतने रिसोर्सेज अरेंज कर लिए जाए कि दाल रोटी का अरेंजमेंट हो जाए। तो ये चीजें तो उस टाइम थी नहीं, हालात भी ऐसे नहीं थे, और बस स्कूल कॉलेज की जो किताबें होती थी वही कोर्स की किताबें होती थी, और वो भी मोस्टली हमारे टाइम पे अधिकतर बच्चों के पास किताबें नहीं होती थी, तो लाइब्रेरी से जाके रिक्वेस्ट करके कई बार 10 दिन 15 दिन वेट करके फिर वो किताब मिलती थी तो उसे लेके पढ़ते थे। ये तो पता नहीं कैसे प्रभु ने ड्यूटी लगाई, वाहिगुरु ने बख्शिश की, और धीरे धीरे मैंने कॉलम लिखने शुरू किए। मेरा छोटा बेटा है, वो तो आज भी कहता है पापा आप तो मजाक मजाक में राइटर बन गए। तो वो कॉलम लिखे, न्यूज़पेपर में कभी छपते थे कभी नहीं छपते थे, लेकिन अच्छा कंटेंट अगर है और किसी की लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है या किसी को एंटरटेनमेंट हो रहा है। मैंने ह्यूमर के साथ स्टोरीज बहुत सारी लिखी, स्टोरी मोटिवेशनल स्टोरी की मैंने बुक्स लिखी, तो उसमें मैंने साथ में ह्यूमर का टच बहुत अच्छा मेंटेन किया। एक शुरू से आदत थी कि कोई भी बात जब कहनी है तो किसी को पढ़ते टाइम बोझ नहीं लगना चाहिए, क्योंकि किताब अगर पढ़ते टाइम बोझ लगे तो वो आदमी छोड़ देता है। हाँ जी। किताब नॉलेज तो देती है, ज्ञान तो हमें देती है, साथ में नींद भी बड़ी अच्छी देती है। 4-5 पेज पढ़ो ना तो नींद बहुत बढ़िया आती है फिर सारी रात। तो ये स्लीपिंग पिल का भी काम करती है बहुत अच्छा। तो लेकिन ये है कि प्रिंट मीडिया में लिखा, उसमें थोड़ा ये जॉली अंकल ब्रांड बन चुका था, लोग पहचानने लग गए। 1-2 बड़ी अखबारों में लिखा काफी लंबे अरसे तक। तो लकी रहा कि उसके बाद जब मैंने पहली किताब लिखी हंसते हंसते जीना सीखो, तो बहुत अच्छे पब्लिशर मिल गए, इंडिया के लीडिंग पब्लिशर्स हैं, वो मेरी किताबें बनाते हैं। तो रिस्पांस अच्छा रहा, तो एक के बाद एक, मतलब कि ऐसा पहले दिन कभी नहीं सोचा था। जब तीसरी किताब मेरी रिलीज हुई थी यहाँ वर्ल्ड बुक फेयर में, तो उस टाइम ये था कि यार 5 तो जरूर करूंगा, 5 तो लिखनी है। कोई टारगेट जब भी, मतलब कि जैसे यहाँ से दिल्ली से अमृतसर जाना है तो स्टेप तो छोटे छोटे लेते हैं। हाँ जी। लेकिन टारगेट था कि हमें वहां तक जाना है। एक बूंद झरने से गिरती है जब, वो अकेली कुछ नहीं कर सकती, लेकिन धीरे धीरे चलते हुए जब वो समुंदर के साथ मिल जाती है तो वो समुंदर बन जाती है। वाओ। तो इसी तरह दोस्तों का, पाठकों का, परिवार का सबका सहयोग मिला, पब्लिशर्स अच्छे मिल गए। तो इंडिया में आज, इंडिया के ऑलमोस्ट हर एयरपोर्ट पे, कितना छोटा है बड़ा है, हर एयरपोर्ट पे मेरी बुक्स अवेलेबल हैं। बाहर बहुत सारे कंट्रीज, सिटीज ऐसे हैं जिनका नाम भी नहीं सुना, वहां से भी मेल मैसेज आते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि वहां तक लोग पढ़ते हैं और किताबें लेके जाते हैं, रास्ते में पढ़ते हैं, वहां जाकर दूसरों को भी गिफ्ट करते हैं। इंडिया से बाहर मैंने काफी प्रोग्राम इस तरह से किए हैं दूसरे बहुत सारे कंट्रीज में। तो ये सारा उस कलम की बदौलत है, वाहिगुरु की बख्शिश है कि उसने कलम में इतनी ताकत दी, क्योंकि एक इंसान के पास इतना ज्ञान नहीं होता कि वो किसी को इतना ज्ञान दे सके। तो ये वाहिगुरु की बख्शिश है कि उसने मुझे ताकत दी, हिम्मत दी, और हर किताब एक के बाद एक जो लिखी है वो एक बड़ी सक्सेस बनती चली गई। उसी से ये हिम्मत आई। ग्रेट अंकल। इनफैक्ट मैं बता रहा हूँ, मतलब आई थिंक 3 साल पहले जब मैं लाइफ कोचिंग शुरू करी थी, और मैं आपको बताता हूँ, मैं बहुत ज्यादा ना इंट्रोवर्ट था, मैं किसी से बात नहीं करता था, मतलब कि क्या करना है, बिकॉज मैं पॉलिटिक्स, रिलीजन, ये चीजें डिस्कस नहीं करता था, तो मेरे दोस्त ही नहीं थे और मैं किताबों में ही रहता था। तो मैं जब 3 साल पहले मैंने लाइफ कोचिंग शुरू करी, तो मैंने लोगों से मिलना शुरू करा, थोड़ा फेसबुक पे देखना शुरू करा,
जैसे आप राइटर हो, ऑथर हो, मेरे को 2-2.5 साल पहले पता चला था आपके बारे कि जॉली अंकल हैं। तो तब आप, बिकॉज अंकल आप इतनी बड़ी शख्सियत हो और आप इतने डाउन टू अर्थ और ग्राउंडेड हो, तो तब नहीं पता था ये। तब था कि अच्छा जॉली अंकल है, इनसे तो मिलने के लिए बड़ा मुश्किल होता होगा। ये 30+ बुक्स लिख चुके हैं, इतने सारे फॉलोअर्स हैं इनके। बट जब मैं मिला अंकल आपसे, इनफैक्ट मैं सच में, इट वॉज टचिंग टू सी योर ह्यूमिलिटी। और आई थिंक वही चीज है जो आपको और बड़ा बनाती है, जस्ट रादर देन जस्ट योर बुक्स। तो थैंक यू सो मच फॉर दीज ब्लेसिंग्स, क्योंकि ये यूथ को हमें भी सीखना है अंकल। आजकल होता क्या है कि थोड़ा सक्सेस मिलता है हमें, इंक्लूडिंग मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट में हूँ। तो पहले क्या लगता था, अच्छा जब मैनेजर बन जाऊंगा तो और अच्छा हो जाएगा, सीनियर मैनेजर बन जाऊंगा तो और अच्छा है। जब अब मैं वीपी बन गया हूं, तो शुरू में लगता था वीपी बन जाऊंगा तो मैं बहुत कुछ कर लिया मैंने लाइफ में। बट वो ईगो सेटिस्फाई होती गई, बट हम छोटे होते गए। फिर जब मैं लाइफ कोचिंग में घुसा, मैं काउंसलिंग करी लोगों की, तो मुझे लगता था कि जो मैं चाह रहा था वो बिल्कुल गलत था। और अब समझ आ रहा है कि असली मायना है कि किसी को कोई खुशी दे दो, किसी की लाइफ में थोड़ा इंप्रूवमेंट ला दो, उसके उसके आगे कोई भी बड़ी चीज नहीं है। और आज के अंकल आपके सेशन से बिल्कुल साफ पता चल रहा है, जो हमें बेसिक्स तो चाहे 20 साल पहले थे, 40 साल पहले थे, बेसिक्स तो अभी भी वही रहेंगे कि आपको पहला स्टेप लेना है और परसिस्टेंट रहना है। और आपने जो बोला कि अगर हम अमृतसर तक जाना है तो छोटे छोटे हम सोच के जाते हैं कि अच्छा हम रास्ते में यहाँ रुकेंगे, छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं। अगर हम सीधा सोचेंगे कैसे जाएंगे, फिर तो कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो ब्रेक डाउन योर गोल्स अंकल। इनफैक्ट बाकियों का पता नहीं, मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ इस सेशन से। और एक जो ड्रीम था 2.5 साल पहले, 3 साल पहले जब आपके बारे में सुना था, पढ़ा था, और आज इस फोरम पे आपके साथ हुआ, आई फील सो ब्लेस्ड कि है ना, मैं आपसे कॉन्वर्सेशन कर पा रहा हूँ, और आप पीपल हु वर्क विद मी उनको आप ये मैसेज दे रहे हैं। तो थैंक यू सो मच अंकल फॉर द सेम। तो अंकल इन इंटरेस्ट ऑफ टाइम एक दो चीजें जो फाइनली पूछना चाहता हूं मैं कि प्लीज बताइए। आजकल जो मेरे पास मैक्सिमम क्लाइंट्स आते हैं, या मेरे पास जो लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं, या जो भी मेरे से बात करते हैं लोग, उनका सबसे बड़ा चैलेंज होता है कंपैरिजन। कि वो कुछ भी काम करने से पहले सोचेंगे कि मैं कैसे कर सकता हूं, अगर वो मेरे से आगे निकल गया लोग क्या सोचेंगे। कंपैरिजन एक बहुत बड़ा रुकावट है उनके लिए। और उसके कारण वो नेगेटिविटी आती है या ओवर थिंकिंग करते हैं। तो वो कंपैरिजन कैसे बंद करें अंकल? देखो, कंपैरिजन तो लाइफ में कभी घर में दो बच्चों का भी नहीं करना चाहिए। आज आप दो बच्चों का कंपैरिजन करना शुरू कर दो कि एक बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, उसके मार्क्स अच्छे आते हैं, आप 2 बार 3 बार बोल दो। दूसरा बच्चा जिसके थोड़े से मार्क्स कम आए हैं, जो एफर्ट करके शायद उससे बहुत बेहतर कर सकता था, उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा होनी शुरू हो जाएगी। उसके अंदर जिंदगी से जो प्यार, जो जिंदगी से लगाव, जो एक उसमें आगे बढ़ने के लिए उसके मन में एक अभी तक स्ट्रगल, फाइटर वाली एक फीलिंग थी, वो धीरे धीरे उसको छोड़ देगा। ठीक है, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, वो कर रहा है, मेरा भाई कर रहा है, मेरी बहन कर रही है, वो ही करेगी, मुझे तो करना ही नहीं। एक तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि कुछ लोगों में फाइटिंग स्पिरिट होती है कि भी एक ने किया है, वो मेरे से आगे बढ़ा है, उसको एज ए चैलेंज हम एक्सेप्ट करते हैं और हम फिर फाइट करते हैं और उससे आगे निकलने की कोशिश करते हैं। अगर वो स्पार्क, वो चिंगारी हमारे अंदर जाग जाती है तो हम दुनिया को पीछे छोड़ सकते हैं। लेकिन फिर बात आती है हमारे एटीट्यूड, हमारे नजरिए के ऊपर कि हम किस चीज को कैसे लेते हैं। मैं इस पे कई बार एग्जांपल देता हूं कि अब शेर है, उसको कह दो भाई तू पानी में तैर के दिखा, पानी में 1 दिन 2 दिन रह के दिखा, कैसे रह लेगा। फिश को कह दें कि तू पेड़ पे चढ़ के दिखा हमें, फिश उस चीज के लिए बनी नहीं है। हर आदमी की बेसिक क्वालिटीज अलग है। भगवान ने जो बेसिक गुण है वो सबके अंदर अलग अलग भरे हुए हैं। कभी अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर करो ही नहीं, देखने की भी जरूरत नहीं है। कंपेयर करना तो बड़ी दूर की बात है। हमें सिर्फ ये देखना है कि हम बेस्ट क्या कर सकते हैं।
हमारा फोकस क्या है, हमारी डेडलाइन होनी चाहिए कि हाँ मुझे 1 साल के बाद 2 साल के बाद ये टारगेट अचीव करना है। जिस दिन ये चीज आ जाएगी आप खुद इतने कॉन्फिडेंट, इतने ब्रेव बन जाओगे कि दुनिया आप झुक के सलाम करेगी आपको। वंडरफुल। सिर्फ ये है, किसी के तरफ देखने की जरूरत नहीं है, वेट करने की जरूरत नहीं है। अपने आप को डेली अपडेट करते रहो, डेली अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाते रहो। राइट अंकल। दुनिया आपसे कंपेयर करेगी कि यार मुझे जॉली जैसा बनना है, मुझे गगनदीप जैसा बनना है। आज मुझे 10 लोग कहते हैं कि अंकल हमें आप जैसा राइटर बनना है। मैं कहता हूं मेरे जैसा क्यों बनना है, मेरे से अच्छा क्यों नहीं बनते आप? हाँ जी। मेरे से अच्छे भी तो बन सकते हो, मेरे से अच्छे और 500 राइटर हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं। आप वैसा क्यों नहीं बनना चाहते? क्यों अपने आप पे लिमिट लगा रहे हो? जब हम इस तरह की एक लिमिट लगा लेते हैं तो हम खुद ही अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, बिल्कुल लो प्रोफाइल में ले जाते हैं। दूसरा कोई कहे या ना कहे, हम अपनी कैपेबिलिटीज पे खुद डाउट क्रिएट करना शुरू कर देते हैं कि हम इससे आगे तो बढ़ ही नहीं सकते, उससे आगे तो जा ही नहीं सकते कभी। क्यों भाई? उसमें ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर भगवान ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी डाल के भेजा है? राइट। यहां जरूरत है कि हाथ पैर सबके सेम है, हमें अपने माइंड को अपग्रेड करने की जरूरत है। फोन को अपग्रेड करते रहते हैं, लैपटॉप को करते हैं अपग्रेड, हर महीने 15 दिन में नए सॉफ्टवेयर आते हैं, नए ऐप्स आते हैं, उसे अपग्रेड करते हैं तो वो अच्छा परफॉर्मेंस देता है। माइंड को भी तो अपग्रेड करो। यस। लाइफ कौन मैनेज कर रहा है हमारी? सिर्फ हमारा माइंड लाइफ मैनेज कर रहा है। वो कोई बाहर से हमारे मदर फादर ब्रदर जितनी मर्जी कोशिश करना चाहें, गाइड कर सकते हैं, थोड़ी बहुत फिजिकली हेल्प कर सकते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी हमें पैदा करनी है। प्रोडक्टिविटी हमें अपने अंदर से निकालनी है। और ऐसे ऐसे करिश्मे हो सकते हैं कि जो दुनिया वालों ने नहीं सोचा, हमारे घर वालों ने नहीं सोचा, और जिस दिन हम वो अचीव करते हैं और जब वो सक्सेस मिलती है, जब सारे कहते हैं कि तुम ये काम नहीं कर सकते, और फिर जब तुम करके दिखाते हो, उसका मजा जो है, उसका जो फ्रूट मिलता है, उसका आनंद ही कुछ हो रहा है। अरे अंकल आए, और मैं जब आप बोल रहे हो ना मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बताया मैं 3 साल पहले मैं 5 लोगों से बात नहीं कर सकता था, और आज की डेट में अगर मैं, कई बार होता है सेशन होते हैं 5000 लोगों से भी बात करता हूँ। तो ऑफ कोर्स ये एक जो है, एक तो है एक हमारी डिटर्मिनेशन, और एक है कि एक डिवाइन सुपर पावर है, वाहिगुरु है, यूनिवर्स है, वो हमें और स्ट्रेंथ देती है कि रोज हम कुछ ना कुछ अपने आप को इंप्रूव करें। और अंकल इसमें मैं ऐड करता हूँ, जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें नेगेटिविटी आती है जब हम करना चाहते हैं। तो अगर कोई भी सेलिब्रिटी हो या स्पोर्ट्स पर्सन हो, मैं एग्जांपल लेता हूँ फुटबॉल का या विराट कोहली का, जब वो जब स्टेडियम में उतरते हैं तो उनके सपोर्टर के साथ साथ उनके ऑपोजिशन वाले भी होते हैं जो चाहते हैं वो आज फेल हो जाए, जो चाहते हैं वो आज 0 पे आउट हो जाए, बट वो फिर भी जाते हैं, और कभी कभी फेल तो सब होते हैं, वो फिर भी जाते हैं, वो अपना बेस्ट देकर आते हैं, या सेंचुरी मारते हैं या फुटबॉल में गोल करके आते हैं। क्यों? क्योंकि उनका फोकस है उनका खुद का गोल। लोग क्या बोल रहे हैं, लोग उनको चाहते हैं कि फेल हो जाए, बट जब वो सेंचुरी बनाते हैं वही लोग हैं जो तालियां मार रहे होते हैं कि हाँ ये तो बहुत अच्छे प्लेयर है। तो गोल को असेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने आप के ऊपर फोकस, रोज इंप्रूवमेंट लाना ही एक नजरिया है कि हम रोज बेटर हो सकते हैं। गगनदीप जी, आपने एक वर्ड यूज किया यहाँ पे, फेल, 2-3 बार वर्ड यूज किया, फेल। आपको फेल पता है ये शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? 99% लोगों को फेल की फुल फॉर्म नहीं पता। नहीं पता होगी अंकल, बताइए। हाँ जी। और फेल से हम डरते हैं, फेलियर से डरते हैं कि ये नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, ये नहीं हुआ तो मेरा कैरियर खत्म हो जाएगा, ये एग्जाम पास नहीं हुआ तो मुझे जॉब नहीं मिलेगी। फेल की फुल फॉर्म है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। वाह, ओके। आज अगर हम फेल होते हैं तो एक स्टेप लिया था, नहीं सक्सेस मिली, कोई बात नहीं। डॉक्टर
सारी उम्र प्रैक्टिस करते हैं, 25 साल, 30 साल, 40 साल प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस वर्ड यूज करते हैं। वो ये नहीं करते कि मैं डॉक्टर हूं, मैं एक्सपर्ट हूं, मैं सर्जन हूं। क्या 25-30 साल का एक्सपर्ट सर्जन से गलती नहीं होती? वो सारे पेशेंट को बिल्कुल जिंदगी दे देता है। नहीं होता। इसीलिए वो वर्ड यूज करते हैं, प्रैक्टिस। वकील 50 साल प्रैक्टिस करने के बाद, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाद भी कहते हैं कि हम केस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते लाइफ में क्या? हम छोटी सी चीज को लेके क्यों अपने अंदर एक डर पैदा करें कि हम फेल हो जाएंगे? राइट। फेल का फियर आज के बाद एटलीस्ट जितने दोस्त, जितने बच्चे, जितने मेरे साथी सुन रहे हैं, फेल लिख के आज उसके ऊपर क्रॉस लगा दो कि जिंदगी में फेल नाम की हमारी जिंदगी में कोई चीज नहीं। अमेजिंग सर। हाँ जी। प्रैक्टिस करो पेशेंस के साथ, एक बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार सक्सेस अपने आप चल के आपके पास आएगी। राइट अंकल। और एक चीज अंकल जो मैं ऐड करना चाहूंगा कि जैसे आप जीते हो अपनी लाइफ कि खुश रहो, चीज फेलियर होगा नहीं होगा, खुश रहो। इसके लिए अंकल क्या बोलोगे आप कि ना, क्योंकि खुश रहना और एक्साइटेड रहना लाइफ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कि अगर आज मेरा, कई लोगों का होता है आज मेरा इतना नुकसान हो गया, आज मेरा ब्रेकअप हो गया, वो छोड़ के चलेगी, या मेरे बॉयफ्रेंड ने शादी कर ली, तो वो टेम्परेरी तो ठीक है, बट रोज लाइफ में जब एक्साइटिंग रहती है ना, मैं खुद देखता हूँ अगर मैं एक्साइटेड उठता हूँ लाइफ के लिए तो उस दिन बहुत अच्छा अच्छा दिन जाता है। और कैसे लोग छोटी छोटी चीजें अडाप्ट कर सकते हैं कि वो लाइफ को एक्साइटिंगली ले। और इतना सारा हमने, ऐसा लगता है कि मैं कल देख रहा था कि हमने अननोइंगली अपने सर के ऊपर इतना बड़ा भार रखा हुआ है ना, जो दिख नहीं रहा है, तो जिसकी वजह से हम कुछ देख ही नहीं पा रहे, इधर उधर तो छोड़ो, अंदर क्या देखेंगे। तो उस बैगेज को कैसे हटा के अंकल बाहर रखें और जिंदगी जिए लोगों के लिए, ये इसके लिए क्या हो गया? बड़ा सिंपल, मेरे ख्याल इससे सिंपल एग्जांपल दुनिया में नहीं हो सकता, मैं वो शेयर करता हूं आपके साथ। हमें अपना बिहेवियर जो है ना, वो आलू की तरह रखना चाहिए। आलू एक ऐसी चीज है, पूरी दुनिया में किसी कंट्री में चले जाओ, किसी एयरपोर्ट, किसी रेलवे स्टेशन, किसी ढाबे पे चले जाओ, 5 स्टार में चले जाओ, सब जगह मिलेगा आलू, किसी ना किसी फॉर्म में मिलेगा अलग अलग। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितनी सब्जियां हैं सबके साथ दोस्ती रखी हुई है उसने। राइट। आलू मटर भी बन जाते हैं, आलू पनीर भी बन जाता है। एक मेरे दोस्त हैं, वो आलू और मटन बड़ा टेस्टी बनाते हैं, वो खाते हैं कि मटन के साथ आलू का मजा बड़ा आता है। तो आलू की तरह अगर हम स्वभाव बना लें कि अगर हमारा एक दोस्त आया है, क्योंकि सबकी नेचर अलग अलग है, सबका स्वभाव अलग अलग है, हम अगर उनकी कमियां निकालेंगे तो हमारी ट्यूनिंग नहीं हो पाएगी। रिजल्ट क्या होगा कि हम अपने लिए स्ट्रेस क्रिएट कर लेंगे, अपने लिए टेंशन क्रिएट कर लेंगे। हमारे अंदर भी 10 कमियां हैं, हमें भी तो लोगों ने एक्सेप्ट किया है ना, हमारी फैमिली वालों ने एक्सेप्ट किया है, हमारे दोस्त भी हमें एक्सेप्ट करते हैं, हम बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं है ना। अगर वो लोग हमें एक्सेप्ट कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं उन्हें एक्सेप्ट कर सकते? That's right. अगर ये एटीट्यूड ले लेते हैं और इसके साथ हम चाहे अपना बिजनेस कर रहे हैं, किसी एमएनसी में जॉब कर रहे हैं, या बहुत बड़ी फैक्ट्री है हमारी, 100-200 वर्कर है, हर आदमी की प्रॉब्लम अलग है, बोलने का तरीका अलग है, काम करने का तरीका अलग है। अगर हम उसके लेवल पे जाके बात करते हैं तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। एग्जैक्टली। कहीं कोई किसी किस्म की चिंता, टेंशन, स्ट्रेस रहेगा ही नहीं। डिप्रेशन तो बहुत दूर रहेगा, डिप्रेशन तक तो पहुंचेंगे ही। राइट अंकल। तो बिल्कुल सीधा फंडा है एवरीवन कि हमें आलू की तरह रहना चाहिए, सब जगह मिक्स होता है, सब जगह यूज होता है। और अंकल घमंड नहीं है बिल्कुल भी कि हर जगह एडजस्ट हो जाता है। एंड और उसके बिना बिल्कुल सही बोला, बिकॉज एग्जाम्पल कैसा लगा गगन जी को? बिल्कुल अंकल टॉप, मतलब आप कभी भूलूंगा नहीं मैं। इनफैक्ट अगर खुद को भी लगेगा कि अच्छा हम गलत जा रहे हैं तो याद रखना पड़ेगा कि आलू इज द बेस्ट एग्जाम्पल, कि सब जगह अवेलेबल है और तभी वो हर जगह चल रहा है, सब जगह। और ये आई थिंक सबको याद रहेगा
और आई थिंक और ह्यूमर से अच्छे अंकल कोई चीज ही नहीं है अपने आप को मोटिवेट और अपने आप को राइट डायरेक्शन में डालने के लिए। होता क्या है कि मैं आज की डेट में अपनी पुरानी गलतियों पे हंसता हूँ, उस पे मेरे को गुस्सा नहीं आता। पहले गुस्सा आता था कि मैंने कैसे गलत कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब मेरे को हंसी आती है, और आई थिंक वो इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को उस अपने आप के ऊपर हंस पाए, अपने आप को खुद का मजाक खुद उड़ा के और खुद ही अपने आप को बेटर कर सके कि यार तुम कैसे बेवकूफ थे, तुमने ये गलती करी, चलो कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। और आई थिंक ऐसे ही लाइफ अंकल चलती रहती है, तभी हम आपकी स्टेज पे हम भी पहुंचे, आपकी ब्लेसिंग्स मिले। तो 37 मेरे से आगे पहुंचो। मैं कहीं नहीं पहुंच पाया, मेरे से आगे बहुत मंजिलें हैं अभी। राइट अंकल, तो राइट। सिर्फ अपने विचार, जो आपके विचार हैं वो बड़े पावरफुल हैं, उसको एनर्जी आपने देनी है। दैट्स राइट। वो विचार को अगर आप, अब क्योंकि ब्रेन जो है हमारा, अब कुछ लिखना है हमने जैसे, तो 3,500 थॉट इमीडिएटली यहाँ पे हमें देता है सिग्नल, यहाँ पे ये दो उंगलियों पे। अब उन विचारों को दिमाग अपने आप यूज नहीं कर सकता, उसको पावर हमने देनी है। अगर हम उसे सही तरीके से पावर दे देते हैं तो उन विचारों से बहुत सारे चमत्कार हो सकते हैं। एग्जैक्टली अंकल। आज तक दुनिया में जितने आविष्कार हुए हैं वो उन विचारों के थ्रू हुए। राइट अंकल। तो विचारों की ताकत को समझना होगा, विचारों की ताकत को समझना होगा। अगर हमें अपनी लाइफ में चमत्कार करने हैं, नए नए आविष्कार करने हैं, तो उन चीजों को हमें समझने की जरूरत है। जी प्लीज, आप कुछ कह रहे थे, सॉरी। मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया बिकॉज मैं ना लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ाता हूँ कि जो हम सोचते हैं वो हो सकता है। वही आप जो बात कर रहे हैं एग्जैक्टली आपने, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, आपने पहले ही आंसर कर दिया कि हमारे थॉट्स इतने स्ट्रांग है कि जैसे हम फोन की बात कर लें कि आज से 20 साल पहले किसी ने सोचा ही नहीं था, और किसी ने सोचा कि ऐसा कुछ बन सकता है कि लोग कहीं पे भी बैठे हमें देख सकते हैं, हम बात कर सकते हैं। और वो एक थॉट ही था जो इतना पावरफुल था। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो मैं दिखाता हूँ, थॉट बिकम थिंग्स, जो आपने समझाया कि हमारे दिमाग में इतनी ताकत है, हम एक ह्यूमन मैग्नेट की तरह है कि हम जो चाहते हैं वो हमारी लाइफ में होगा। बट उसके लिए ऑफकोर्स मेहनत करनी पड़ेगी और अपनी क्लैरिटी लानी पड़ेगी, जो अंकल ने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया। सो आई थिंक अंकल लोगों को जो मैं मुश्किल से समझाता हूँ अपने आसान भाषा में समझा दिया। इसके लिए मैं 3 वर्ड यूज करता हूँ, क्योंकि मैं ग्राफोलॉजिस्ट भी हूँ। हैंड राइटिंग और सिग्नेचर देख के मैं पूरी पर्सनैलिटी को एनालाइज कर लेता हूँ। बहुत सारे लोग मेरे सामने एक वर्ड लिखने से भी कई बार डरते हैं कि ये एक वर्ड भी लिखा तो अंकल पूरा देख लेते हैं कि भी क्या कितने पानी में है हम। क्योंकि हमारा माइंड जो है वो टोटली ब्लाइंड है, वो अपने आप अच्छे बुरे का फर्क नहीं कर पाता। राइट। तो जो थॉट प्रोसेस है हमारा, उसको अगर हमारा दिमाग ठीक ढंग से कंसीव कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, उसको बिलीव करना शुरू कर देता है कि ये मेरे मास्टर ने मुझे कहा है कि मुझे इस पे काम करना है। उसको गाड़ी चाहिए अच्छी, उसको बड़ा घर चाहिए, उसको अच्छी जॉब चाहिए, उसको ये पोस्ट चाहिए, जो भी उसका ड्रीम है। अगर वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, बिलीव करना शुरू कर देता है हमारा माइंड, तो उस चीज को अचीव करने में देर नहीं लगती। क्योंकि फिर वो सारी एनर्जी जितनी माइंड की है, जितनी हमारी बॉडी की है, जितने हमारे इमोशंस हैं, सबको पूरी ताकत से, कहते हैं ना, झोंक देना। वो उस टारगेट की तरफ झोंक देता है। और जब तक वो चीज हम अचीव नहीं कर लेते, उस टाइम तक वो रुकता नहीं है। एग्जैक्टली। तो इसको मैं नॉर्मली इस तरह से एक्सप्लेन करता हूं। तो अपने थॉट्स के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। थॉट्स हमारे बड़े बैलेंस्ड होने चाहिए, और उसको बड़े तरीके से अपने माइंड को एक बार कन्विंस करने की जरूरत है। माइंड को एक बार समझा दो तो माइंड फिर आपका गुलाम बन के आपका काम करेगा। फिर आप माइंड के गुलाम बन के नहीं काम करोगे, नहीं यार गर्मी है, बाहर कौन जाए, एसी चल रहा है, यहाँ बैठे हैं कंफर्ट जोन में, मजा आ रहा है, पिक्चर चल रही है फर्स्ट क्लास। राइट। तो वो चीज से खत्म हो जाती है। नो, वंडरफुल अंकल, वंडरफुल। बहुत कुछ सीख लिया मैंने इस सेशन से। आई एम श्योर लोगों ने बहुत कुछ सीखा आज सेशन से।
So of course, but thank you so much. अगर अभी लिमिटेड टाइम है तो थैंक यू सो मच। आपसे तो बातें मैं ऑफलाइन करता ही रहूंगा और बहुत कुछ लर्निंग को लेता रहूंगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ अगर किसी के कोई क्वेश्चन है। बट प्लीज। अंकल थैंक यू हाँ सो जी। मच, आपने इतनी आज लर्निंग और नॉलेज इतने प्यारे और इतने सिंपल तरीके से समझा दिए आई थिंक। और आलू वाला एग्जांपल तो आई थिंक 2-3 लोगों ने कॉपी भी कर लिया है। तो गुड पार्ट इज, और गुड पार्ट इज कि इसको हम जितना शेयर कर सकते हैं करो, बिकॉज यू नो ये ऐसी चीज है कि किसी की अगर 10 में से 2 लोगों को भी लाइफ में चेंज आ गया उनकी, नथिंग इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं है। और नॉलेज जैसे अंकल शेयर कर रहे हैं, तो नॉलेज शेयर करने से ही अगर हम अंकल से भी आगे निकल जाए, आई थिंक आप ही हमसे ज्यादा प्राउड हो गए अंकल कि अगर आज से 5 साल में किसी एक फोरम में होगा देखो, तो माँ माँ बाप जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, हर आदमी जीतना चाहता है, जीत के खुश होता है, लेकिन माँ बाप बच्चों के आगे हार के खुश होते हैं। जिस दिन उनका बच्चा उनसे आगे निकलता है, उन्हें सबसे ज्यादा खुशी उस दिन होती है कि मैं आज हार गया हूं, मेरा बेटा मेरे से आगे निकल गया, मेरी बेटी आज IAS अफसर बन गई है। उस दिन उन्हें सबसे ज्यादा खुशी होती है। तो हमारे इसके अलावा मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी तकरीबन 300 से ज्यादा वीडियोस हैं, जॉली अंकल के नाम से यूट्यूब चैनल है। हाँ तो जी, यहाँ इतने टाइम में हम इतना कुछ नहीं डिस्कस कर सकते, लेकिन आप वहां पे डिस्कस देख सकते हैं सारी वीडियोस। और फिर भी किसी की कोई क्वेरी हो या कोई भी अगर आप चीज क्लैरिफिकेशन लेना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, मैं जरूर कोशिश करूंगा आपकी हर प्रॉब्लम जो है, वैसे तो लाइफ में आनी नहीं चाहिए। इतना अपने आप को स्ट्रांग बना लो इंटरनली कि हमें प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ नहीं देखना, हमें इतना अपने आप को स्ट्रांग बनाना है कि लाइफ में प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। हमें उससे एक कदम आगे सोचने की जरूरत है। हम तैयारी करते हैं कि प्रॉब्लम आएगी तो ये कर लेंगे, प्रॉब्लम आएगी तो ये कर लेंगे। ऐसा क्यों नहीं सोचें कि प्रॉब्लम जिंदगी में आए नहीं। आई नहीं, राइट। नो अंकल, डेफिनेटली वंडरफुल, थैंक यू सो मच अंकल। आई थिंक जो लोग अंकल को फॉलो करना चाहते हैं, मैं लाइव के बाद अपनी स्टोरी पे अंकल के सारे इंस्टाग्राम यूट्यूब पे जो भी अंकल की इतनी सारी अमेजिंग वीडियोस हैं, प्लीज देखो। आई थिंक बिकॉज अगर ये स्मॉल स्मॉल चीजों से इतना इम्पैक्टफुल है तो आई विल शेयर दैट, ताकि अंकल को आप फॉलो करो यूट्यूब पे। एंड जो ये बातें हमने 1 घंटे में करी हैं, आई थिंक अगर हम रोज एक वीडियो भी देखेंगे अंकल की तो ऑफकोर्स लाइफ में 30 डेज में बहुत सारा चेंज आ जाएगा। एंड जस्ट वांट टू सबमिट अप अंकल कि चलो हमारा ये अभी फर्स्ट वीक खत्म हुआ है नो नेगेटिविटी नवंबर का। आई थिंक लोगों को अच्छी वाइब्स आ रही हैं और आई थिंक फर्स्ट वीक में आप भी आए हैं हमारे साथ, थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक आई वांट टू थैंक द पीपल ऑल्सो जो आए हैं सब, कि वो इतना सपोर्ट कर रहे हैं इस कैंपेन को, नो नेगेटिविटी नवंबर। दे आर पोस्टिंग, दे आर शेयरिंग, दे आर कॉमेंटिंग। और आई थिंक वो अब हम मेरा अंकल कोशिश ये है कि मैं अपनी तरफ से थोड़ा कुछ कर पाऊं कि लोग अपनी लाइफ में थोड़ी पॉजिटिविटी रोज ला सके, राइट। क्योंकि मेरे को याद है आज से 6 साल पहले जब मैं डिप्रेशन में था, तो मैं कुछ भी जो आप बोल रहे हैं कि 15 मिनट में रोज निकालता था सिर्फ मोटिवेशनल कोटेशन पढ़ने के लिए। और वो 15 मिनट पढ़ते पढ़ते कब 2 साल निकल गए और कब मैं अपना डिप्रेशन खत्म करके आज लोगों को कोच कर रहा हूँ और वो कर रहा हूँ। तो अगर मैं कर सकता हूँ, अगर अंकल कर सकते हैं, तो हम में सब में पावर है कि हम अपने आप को इम्प्रूव करके रोज एक नया स्टेप लें और अपने आप के ऊपर इम्प्रूवमेंट के ऊपर फोकस करें। और जो डीज अंकल ने बताए हैं, ड्रीम्स, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, ये सब फॉलो करो अपनी लाइफ में। आज रोज एक डी सबसे पहले डिस्कवर योरसेल्फ। डिस्कवर योरसेल्फ, वो उसी से शुरू होगा। बिकॉज राइट अंकल, ये मैंने एक किताब लेटेस्ट लव यू जिंदगी, वाओ, कभी कभी हार कभी जीत, जिंदगी की यही रीत। तो हार जीत आती रहेगी यार, डरने की जरूरत नहीं है। मैं एक लास्ट लाइन बोलता हूं, उसके बाद गगन जी प्रोग्राम को खत्म करेंगे। अभी ना पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी ना पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। ना हारे हैं ना हार मानेंगे कभी, हमने ये खुद से वादा किया है। जो प्रॉमिस एक बार आप खुद से कर लोगे, वो प्रॉमिस कभी टूटेगा नहीं और हमेशा पूरा होगा और आपके सारे ड्रीम्स पूरे होंगे। ये मेरी आप सभी के लिए दुआ प्रार्थना। थैंक जी यू गगन अंकल, बिल्कुल परफेक्ट वे टू सम इट अप अंकल, बिल्कुल आपने जो बोला।
अपने आप से भी प्रॉमिस करेंगे। बट थैंक यू सो मच अंकल, लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड, आपका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। एंड देन डेफिनेटली आपसे जल्दी मिलता हूं मैं, और बहुत कुछ सीखने को है। आई एम श्योर सबने बहुत कुछ सीखा आज, और मैं एक्साइटेड हूँ बहुत। आई एम श्योर हम थोड़ा टाइम भी कम है, बट थैंक यू अंकल अगेन। थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग, थैंक यू फॉर योर लर्निंग्स। एंड यस, कोशिश करेंगे हम जिंदगी में कुछ कर पाए ताकि आपको और प्राउड फील करा पाए हम। Thank you so much, Uncle, for joining in. And thank you, people, for joining in. And stay connected for a daily dose of positivity. This is Vitamin G signing off. And I will share Uncle के YouTube channel का link on my story, ताकि आप Uncle को follow करो और happy रहो, खुश रहो। Thank you so much, Uncle. And I will see you soon. And Okay, सत श्री अकाल।